Namaskar. I'm Shalja Gaur from Government Model Primary School Kandoli, Raipur, Dehradun. Today, we are going to enjoy a poem. Name of the poem is Teamwork. So, as I told you, today we are going to discuss NCERT textbook Marigold, Class 5, Subject English, Unit 2. Name of the poem is Teamwork. The points we are going to discuss are recite the poem, comprehend the meaning, rhyming words, new words, questions and answers. So, the title of the poem, Teamwork, starts with a question. As you can see, the question is, do you like to work and play with others? Do you like? क्या आप चाहते हैं? To work, काम करना, play, खेलना, others, दूसरों के, with मतलब साथ. क्या आप दूसरों के साथ काम करना और खेलना चाहते हैं, पसंद करते हैं? तो जैसा हम सब जानते हैं कि जब हम अकेले काम करते हैं या खेलते हैं, तो हमें उतना मजा नहीं आता जितना जब हम ग्रुप में सबके साथ मिलकर काम कर रहे होते या खेल रहे होते हैं. So, let's see the poem. Teamwork, teamwork, together we can make our dream work. Then we'll share the joy of what we have done. Teamwork, everyone. It's fun to shoot the basketball through the hoop, but if nobody passes, then nobody shoots. And the relay race just can't go on if nobody wants to pass the baton. We are the parts that make up the whole, and we've got our eyes on a common goal. Sometimes it can be a big plus when a you or a me becomes an us. Poet is Jan Negro. Now, let's understand the poem. Teamwork, teamwork. Teamwork means मिलकर काम करना. Together, we can make our dream work. Together, साथ, make, बनाना, करना, dream, सपने, work, काम. मिलकर अपने सपनों पर काम करना. तो टीम वर्क यानी मिलकर काम करने से हम अपने सपनों को साकार या पूरा कर सकते हैं. Then we'll share the joy of what we have done. और तब हम जो हमने डन यानी किया होता है उसके joy आनंद को शेयर कर सकते हैं, बांट सकते हैं. टीम वर्क एवरीवन, प्रत्येक के लिए टीम वर्क. सो फर्स्ट स्टैंजा, टीम वर्क, together we can make our dream work. Then we'll share the joy of what we have done. Teamwork, everyone. यहाँ पर हम एक चीज और ध्यान देंगे कि इस स्टैंजा में आप देख सकते हैं will और will. We will. We will and we have. इन दो वर्ड्स को मिलाकर will और we have, with कर दिया गया है. इनको कॉन्ट्रैक्शन या शॉर्ट फॉर्म कहते हैं. तो हम देख रहे हैं then we'll share the joy of what we have done. इस तरह से इनकी शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर दी गई है. So now next stanza. It's fun to shoot the basketball through the hoop. Fun, मजा, shoot, बॉल डालना,
बास्केटबॉल के खेल में थ्रू द्वारा हुप एक वुडन या मेटल रिंग, बास्केटबॉल के खेल में हुप में से जब बॉल को डाला जाता है तो बहुत मजा आता है। But if nobody passes, then nobody shoots. लेकिन यदि nobody कोई नहीं उस बॉल को आगे पास करता है तो nobody shoots, तो कोई भी उस बॉल को रिंग पर नहीं डाल पाता, तो nobody shoots the ball and the relay race just can't go on if nobody wants to pass the baton. और दूसरा खेल रिले रेस में यदि कोई भी बैटन को, एक छोटी सी स्टिक होती है जो रिले रेस एक खास रेस होती है जो टीम्स के बीच में की जाती है ऑर्गेनाइज, और हर टीम में 3 से 4 मेंबर्स होते हैं जो थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर उस बैटन को एक दूसरे को पास कराते हैं और नेक्स्ट मेंबर आगे दौड़ता है। तो यदि रिले रेस में कोई बैटन को उस स्टिक को आगे पास नहीं करेगा नेक्स्ट मेंबर को, तो वो आगे नहीं दौड़ पाएगा और रिले रेस नहीं हो पाएगी। इन दोनों के लिए जो हमने अभी स्टैंजा पढ़ा उसमें हमने एक वर्ड पढ़ा था हुप। तो आप देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हुप। इसको हुप कहते हैं जिसमें से बॉल को शूट किया जाता है। देन देयर इज अ वर्ड बैटन और बैटन। आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में ये बच्ची दूसरे बच्चे को बैटन यानी वो स्मॉल स्टिक पास कर रही है, तभी रिले रेस कंटिन्यू हो सकती है। So these two words, hoop and baton, are there in these pictures. Now come to the next stanza. We are the parts that make up the whole, and we've got our eyes on a common goal. Sometimes it can be a big plus when a you or a me becomes an us. So, we are the parts. हम parts मतलब हिस्से, हम वो हिस्से हैं that make बनाते हैं the whole. Whole means complete, संपूर्ण, पूरा। हम वो हिस्से हैं जो किसी भी चीज को पूरा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी फैमिली में जो हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं उन सबके मिलने से हमारी फैमिली या परिवार बनता है। इसी तरह से हमारी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स और टीचर्स होते हैं उन सबके मिलने से एक क्लास बनती है। नेक्स्ट लाइन, एंड वी हैव गॉट आवर आईज ऑन अ कॉमन गोल। और इस तरह से मिलकर हम एक लक्ष्य पर अपनी दृष्टि रख सकते हैं, लक्ष्य पर नजर रखते हैं। Sometimes it can be a big plus, और कभी कभी ये बहुत पॉजिटिव, बिग प्लस एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है, एक बेहतर बात हो जाती है। When a you or a me becomes an us, जब आप और मैं, us यानी हम हो जाते हैं। तो जब आप और मैं यानी हम सब मिल जाते हैं, हम हो जाते हैं, तो ये बहुत बेहतर बात हो जाती है क्योंकि तब हम किसी भी लक्ष्य को बेहतर तरीके से पूरा कर पाते हैं। और जैसे कहा भी जाता है कि एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं, यानी उनकी शक्ति बढ़ जाती है, प्रभाव बढ़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि टीम वर्क बेहतर होता है लक्ष्य को पाने के लिए। जैसा पहले भी बताया था, पोएट है जैन नेग्रो। अगर इस स्टैंजा को हम देखें तो हमें यहाँ भी और यहाँ पर भी दोबारा से शॉर्ट फॉर्म्स मिल रही हैं। अगर हम देखें तो इस स्टैंजा में भी
where, where, ये दो वर्ड्स शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो we are और we have से बनी है. So this was our poem. तो इस तरह से we enjoyed the poem. Now come to the second part, rhyming words. Rhyming words के लिए हम फिर से देखते हैं. यहाँ पर टीम वर्क एंड ड्रीम वर्क एक दूसरे के साथ राइम कर रहे हैं. Done, everyone. These are again rhyming. Who, shoots. राइम कर रहे हैं. On, baton. Again these are rhyming. Whole, goal. These two words are rhyming. Plus and us are rhyming. So the poem has these rhyming words. Now come to the next part of the activity. This is learning new words. You know, word power is a big power. शब्दों की शक्ति हमें बहुत बेहतर बनाती है. जैसा हम पहले से ही जानते हैं कि जितने ज्यादा शब्द हमारे पास होते हैं, उतने बेहतर तरीके से हम सीखते हैं, लिखते हैं और पढ़ते हैं और हमारी अभिव्यक्ति बहुत बेहतर होती है. इसीलिए तो इसको वर्ड पावर कहा गया है, शब्दों की शक्ति. और इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि हम डिक्शनरीज का यूज करें और पिक्शनरीज का यूज करें ताकि हमारी वर्ड पावर बेटर हो. सो कम लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर. सो द न्यू वर्ड्स introduced in this poem are teamwork, means combined effort of a group. यानी ग्रुप समूह का कंबाइन मिला जुला एफर्ट प्रयास, समूह का मिलकर किया गया प्रयास या प्रयत्न. Hoop है यानी इस पोएम में वुडन और आयरन रिंग ट्रैंडल along by the child. इस पोएम में हुप का मतलब है बच्चों के द्वारा बास्केटबॉल में बॉल को लुढ़काने के लिए, जिससे बॉल लुढ़काई जाती है, लकड़ी या आयरन से, लोहे से बना वो छल्ला, उसे हुप कहा जाता है. नेक्स्ट वर्ड passes means move onward, आगे बढ़ाना, आगे दिया जाना. नेक्स्ट relay race, race between teams of which each person does part of the distance. वह रेस जो समूहों के बीच होती है, जिसमें each person, प्रत्येक व्यक्ति कुछ दूरी तक दौड़ता है. And last word is baton, the baton. It's short tube or stick carried in relay race. Relay race में इस्तेमाल किए जाने वाला, ले जाया जाने वाला छोटा सा ट्यूब, स्टिक या डंडा. Now the next exercise is complete the following sentences. दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए. Number 1, if nobody passes the ball in a basketball game, then you can't. यदि nobody, कोई भी, passes the ball, बॉल को पास नहीं करेगा बास्केटबॉल गेम में, then तब you can't, तुम नहीं कर सकते. So the answer is shoot. यदि बास्केटबॉल गेम में कोई भी बॉल को आगे पास नहीं करेगा तो आप शूट नहीं कर सकते. Number 2, in a relay race,
if no one passes the baton, then अगर रिले रेस में भी कोई बेटन को पास नहीं करेगा, then it can't go on. तब ये नहीं चल सकती. In a relay race, if no one passes the baton, then it can't go on. So, these are the sentences that we have to complete. Next exercise, name the team members needed for the following. नीचे दिए गए इस एक्टिविटी में आपको टीम मेंबर्स के नाम लिखने हैं जिनकी जरूरत या आवश्यकता इनके लिए पड़ती है जो आगे आपको दिए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, टू प्ले क्रिकेट वी नीड. क्रिकेट खेलने के लिए वी नीड हमें जरूरत है, हमें आवश्यकता है. सो द आंसर इज बैट्समैन, बॉलर्स, फील्डर्स, कोचेस. तो क्रिकेट खेलने के लिए हमें किन टीम मेंबर्स की जरूरत होती है? बैट्समैन, bowlers, fielders, and coaches. Now you have to complete these 3. So number 2 is to make a film we need. एक पिक्चर बनाने के लिए हमें जरूरत है, हमें आवश्यकता है डायरेक्टर, actors, writers, singers. Next, point 3. To run a good school, we need. एक अच्छे स्कूल को चलाने के लिए हमें आवश्यकता है किन मेंबर्स की? Yes, you know. Principal, teachers, students, and helpers. Fourth one is to run a restaurant we need. एक रेस्टोरेंट को चलाने के लिए हमें आवश्यकता होती है मैनेजर, cooks, waiters, and helpers. So, we can see in this activity, we have to find out the name of the team members needed to play cricket, to make a film, to run a good school or a restaurant. क्रिकेट के लिए बैट्समैन, बॉलर्स, फील्डर्स, कोचेस. फिल्म बनाने के लिए डायरेक्टर, एक्टर्स, राइटर्स एंड सिंगर्स. गुड स्कूल चलाने के लिए प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टूडेंट्स, हेल्पर्स. और रेस्टोरेंट चलाने के लिए मैनेजर, कुक्स, waiters and helpers. Now, next activity or exercise is complete the sets of rhyming words. One has been done for you. Rhyming words के sets को पूरा कीजिए. एक आपके लिए किया गया है.
और अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो यू कैन सी one, done, they also are rhyming. So let's start the exercise. Words from the poem. poem से लिए गए शब्द ऊपर दिए हैं. सेकेंड सेट में यू हैव टू राइट योर ओन वर्ड्स. ओन अपने वर्ड्स शब्द. आपको नीचे अपने शब्दों से राइमिंग वर्ड्स का सेट पूरा करना है. वन एग्जाम्पल एक आपके लिए किया गया है. फॉर एग्जाम्पल टीम and the rhyming word is beam. Second is plus. This is from poem. You can write bus, done, fun, hoop, loop, shoot, root, goal, pole, joy, toy. So, in this way we can complete the sets of rhyming words. यहाँ मैंने कुछ शब्द बताए हैं. आप भी अपने शब्द से इन्हें पूरा कर सकते हैं. यहाँ मैंने कुछ शब्द लिखे हैं. आप चाहें तो आप भी अपने मन के कुछ शब्द चुनकर इन्हें पूरा कर सकते हैं. So let's see it again. Team, beam, plus, bus, done, fun, hoop, loop, shoot, root, goal, coal, joy, toy. So this was our exercise of rhyming words. So this was our session on poem Teamwork. In this poem, we discussed poem recitation, rhyming words, new words, and questions and answer. One more important thing we learned in this session was contraction or short forms of words. आपने देखा था कि इस पोएम के बीच में कुछ शॉर्ट फॉर्म्स भी हमने देखी, जैसे will, where, we are. आपका होम टास्क आज के लिए है कि आप किन्हीं 3 चैप्टर्स की रीडिंग करेंगे एंड you'll find out short forms. इसके अलावा you will recite the poem and learn it and sing it in front of your family members. So that's all for today. Hope you have enjoyed the session. धन्यवाद.